Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the Great Academy online classes. आज के कंप्यूटर साइंस क्लास 9 के लेक्चर में हम चूँकि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड द टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस लेसन में हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसका एक क्विक रिव्यू जो है वो आपके साथ रिवाइज़ किया जा सके, डिस्कस किया जाए, ताकि आप उसको अपने माइंड में लेकर आएँ और हम फिर उसी के ऊपर बेस करते हुए नेक्स्ट लेसन जो है उसको स्टार्ट कर सकें. सो अगर आप यहाँ पर देखें, लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने डिफ़ाइन की थी प्रॉब्लम को, एंड आफ्टर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम वी डिस्कस द स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो फर्स्ट आई रिवाइज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. सो अ प्रॉब्लम शुड, well defined problem should not have ambiguities. Conditions should be clearly specified, goal should be clearly described, and the problem statement should easy to understand and solve. After this one, strategies for defining a problem. First we discuss gain background knowledge, and in this strategy we discuss the situations under which the problem arises, the circumstances under which the problem will be solved, and a good solution for the problem, and how can we measure the solution. So ये 4 चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं गेनिंग बैकग्राउंड नॉलेज के अंदर. उसमें सिचुएशंस क्या हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, सॉल्यूशन कौन सा वाला अच्छा है, और नंबर 4 हम उस सॉल्यूशन को कैसे देखेंगे कि हमारा मसला हल हो रहा है. इसके बाद यूज़ गैसेस. इसमें हमने डिस्कस किया था कि आप गैस वर्क करते हैं, आप सिचुएशन को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हैं और उसकी बेस पर आप बेस्ट सॉल्यूशन डिस्क्राइब करते हैं. और तीसरी स्ट्रेटजी जो है, इट इज़ डिफाइनिंग ड्रॉ अ पिक्चर. सो आई डिस्क्राइब, और लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि फिगर्स आर pictorial representation of the problem. So let's discuss this statement, this example. So in this example you can see we have 3 stars equal to 30, then 2 stars plus 1 square equals to 25, and 1 star, 1 circle and 1 square equals to 30. Now you can easily guess what will be the circle equals to. So you can write here it is equal to 15. So dear students, last lecture में हमने problem defining and strategies to define a problem को discuss किया. Now come for today's lecture. Our today's lesson is based upon the understanding a problem. The first step is when you define a problem well, then the second step is how you can understand the problem. So understanding a problem makes it easier to solve and help to save time, money and resources. So if a problem is clearly described, well defined, then the next step is if you understand the problem very well, then you can save money, you can save time and you can save resources. So a clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save number 1 money, number 2 time, and number 3 resources. Money mean cost, time mean the length, the time span in which the problem will be solved, and resources mean human resources and other physical resources. So beta, understanding of problem usually include identification of 5 W's. So this is very important.
This 5W is very important. Mean 5W include what, क्या, who, कौन, when, कब, where, कहाँ, और why, क्यों. So what, who, when, where and why, these are 5Ws, and be remember in a programmer's life these 5Ws are very important. If you are very good in asking the question using these 5Ws, then you are a good problem solver. So how can we identify these 5Ws? So these 5Ws are identified by using problem analysis. So we can say problem analysis is a process in which we dig out, we figure out, हम ये मालूम करते हैं कि 5Ws है क्या उस प्रॉब्लम के 5Ws क्या हैं, ये हम डिग आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं या मालूम करते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस में. प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम. तो अल्टीमेटली जब हम 5Ws को डिग आउट कर लेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी वेल. सो ये सारी जो सिचुएशन है इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं. सपोज यू आर गिवन अ टास्क to prepare a list of students in your school whose name start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students, and there is only 1 week. अगर आप इसको देखें तो हमें कुछ डाटा यहाँ पर गिवन है. नंबर 1 हमें एक टास्क गिवन है, उसमें हमने क्या करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना. और किन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है, जिनके नाम अल्फ़ाबेट ए से शुरू हो रहे हैं, और कहाँ पर करना है, स्कूल के अंदर. और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि हम स्कूल की एक अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकें. और इस सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी आर गिवन ओनली 1 वीक. सो अब हम देखते हैं कि एनालाइज द प्रॉब्लम के अंडर हम 5Ws को कैसे डिस्क्राइब करेंगे. सो व्हाट, क्या, हियर द व्हाट इज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर ए. सो बेटा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स, जो चीज हमें चाहिए, जो चीज हमने करनी है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट. इसके बाद हमारा टारगेट क्या है, और टारगेट जो है वो हमेशा हु से शुरू होगा, स्टूडेंट्स ऑफ आर आवर टारगेट्स. एंड वाई, क्यों करना है, दैट इज टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हेन के अंदर आएगा, कब करना है, दैट इज विद इन 1 वीक. एंड वेयर करना है, कहाँ पर परफॉर्म की जाएगी स्टडी, दैट इज इन द स्कूल. सो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ एनालाइज द प्रॉब्लम विल हेल्प अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन डिटर्मिनिंग द 5Ws. सो in today's lesson, dear students, we discuss about understanding a problem, and understanding a problem के नीचे हमने एक process discuss किया which is named as problem analysis. और problem analysis is to determine 5W. Inshallah, in next lesson we will go further. Thank you very much.